Very good morning, dear students. You are most welcome in video class. Myself, S. Pandey, and today I am representing a video, and their topic is geometry. Dear students, at first I congratulate you all in this video class, which help you very properly to understand the all concept related to geometry. So first of all, I would like to define regarding the geometry. Geometry already that is the part of our mathematics, that is the branch of our mathematics. Within we are studying regarding either lines, shape, curves, etc. This is the also related part of the object of surface area and volume, where we like to define surface area. Surface area, that the part of a geometrical figure occupied by the space. I mean a geometrical figure, how much area occupied, that is their surface area. In a geometrical figure inside, how much space is available, that is volume. So I would like to define the study in mathematics. The study in mathematics of line, shape and curves are known as the geometry. It is one of the oldest branch of mathematics which concerned with either the property of surface area and volume. Surface area, that means a space occupied by a geometrical figure, that is called surface area. Second, volume, a space available inside an object, that is called volume. Regarding the standard international unit, SI unit, I would like to classify SI unit for surface area, that is square unit. Whenever the SI unit for volume, that is cubic unit. Now come back on this part, where that the part of line. Already I would like to shortly define, because in the previous video classes already I have defined regarding the full explanation with line and line segment. जब हम लाइन की बात करते हैं बेटा, तो लाइन just like we given here a point. This is the part of point. This is point, and when lots of point combine together in the plane, when lots of points combine together in a plane or on the plane, that create a line. जब कई पॉइंट्स एक साथ सामूहिक रूप में ऑल टुगेदर मीट कर जाते हैं, तो लाइन का फॉर्मेशन होता है. इस सेकेंड पार्ट इज रे. लाइन का दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइन. लाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज लाइन, this is line, and line can extend in the both direction. I mean लाइन की अपनी कोई निर्धारित लंबाई नहीं होती है. They can extend in both direction. So when we represent a line, given arrow in both direction, both points, just like we write. So suppose this name is AB, then AB, this I can read AB is a line. Second things, line segment.
बेटा लाइन सेगमेंट की बात अगर हम करते हैं तो जिस लाइन को आपने इस समय कहा कि लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ, दे कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन टिल इन्फिनिटी। जब उसी लाइन को एक लिमिटेशन के दायरे में बांध लेते हैं तो लाइन सेगमेंट बन जाता है। मीन्स व्हेन ए लाइन हैज गिवन ए डिफिनिट लेंथ that convert as a line segment, just like this is the line AB is a line, I mean जब हम AB is a line segment, जब लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो वो फिर एक्सटेंड नहीं कर सकता है। सपोज दिस इज AB is a line segment whose length is 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसे अब एक्सटेंड नहीं कर सकते। So a line segment having two endpoints means we cannot extend a line segment। किसी लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट ऑर्डर में होता है, एक डिफरेंट लेंथ का होता है। सेकेंड वन रिलेटेड पार्ट इज लाइन सेगमेंट and third one is that is ray in this way. This is part of ray. Suppose we write here AB, this is a ray. A ray has also not limited length। किसी रे की लंबाई निर्धारित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, सिर्फ लाइन सेगमेंट की लंबाई निर्धारित होती है, बाकी रे और लाइन की लंबाई निर्धारित नहीं होती है। लाइन सेगमेंट जहां दोनों डायरेक्शन की ओर एक्सटेंड करता है, लाइन रे सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी रे का एक पॉइंट ब्लॉक होता है और सेकेंड पॉइंट एक्सटेंडेबल होता है। मीन्स ये एक डायरेक्शन की ओर सिर्फ एक ही डायरेक्शन की ओर इस प्रकार इसी डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकता है। इस पॉइंट में इधर से नहीं कर सकता है, लेफ्ट की ओर नहीं कर सकता है, इससे इसका एक ब्लॉकिंग पॉइंट होता है। बट हैविंग द नॉट डेफिनिट लेंथ। अब इसके बाद बारी आती बेटा क्रमबद्ध तरीके से कि ज्योमेट्री में हम किस किस प्रकार के शेप का स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री में हम किस किस प्रकार के शेप का अध्ययन करते हैं। तो जस्ट लाइक वी आर स्टडी रिगार्डिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड, देन सिलेंडर, कोन, स्फीयर, तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। नाउ कम ऑन द पॉइंट्स। अब इस ज्योमेट्री टॉपिक्स में हम किस किस प्रकार के शेप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, those all points I would like to clear among you all, and its first shape is that is called cube and cuboid। इसका पहला पॉइंट होगा बेटा हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानकारी लेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब किस प्रकार के शेप को हम क्यूब कहेंगे और किस प्रकार के शेप को क्यूबॉइड कहेंगे। दिस इज द शेप, दिस इज द पार्ट ऑफ स्क्वायर in this way। Now we join these points, this form cube। Another one is this is a rectangle, we join this part and this is the shape of cuboid। Now what are the differences? This is cube and this is cuboid।
डिफरेंसेस आर, क्यूब के जो फेसेस होते हैं बेटा वो स्क्वायर फेसेस होते हैं, और यही कारण है कि क्यूब के सारे पार्ट, ये पॉइंट जो होते हैं ये कहलाते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट या ये पार्ट, ये एज कहलाता है, इसे हम लोग साइड कहते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो क्यूब के होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं। वजह क्या है बेटा? व्हाट आर द रीजंस? व्हाई सो दैट? रीजंस आर, ए क्यूब हैज ऑलरेडी स्क्वायर फेसेस, इसके फेस स्क्वायर होते हैं, इसके LBH तीनों आपस में इक्वल होते हैं। Whenever this type of equality you cannot find in a cuboid. Why so that? रीजन क्या है? क्योंकि इसके जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, तो रेक्टेंगुलर होंगे तो LB डिफरेंस होंगे, क्योंकि LB अगर इक्वल होगा तो स्क्वायर बन जाता है, दैट्स दो शेप आर कॉल्ड स्क्वायर, और LB अगर डिफरेंस है तो दैट इज ए रेक्टेंगल। सो इन रेक्टेंगल a cuboid LBH are already not all equal to all among, I mean a cuboid has rectangular faces, rectangular faces. If someone asks you question, my dear kids, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि why all edges of cuboid are not equal, what are the reasons, then what response you should be give? Because a cuboid has rectangular faces. इन रेक्टेंगुलर फेसेस की बात जब हम करते हैं तो L और B में इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते हैं। सो रेक्टेंगुलर इन ए cuboid L, B and H all are not equal. Whenever a cube have all edges are same because its faces are square faces, और जहाँ स्क्वायर फेसेस की बात करते हैं मीन्स उसके साइड इक्वल होंगे, तो दीज आर स्क्वायर फेसेस, इट्स हैड स्क्वायर फेसेस। नाउ क्वेश्चन इज राइजिंग, सो नाउ इफ वी लाइक टू कंस्ट्रक्ट देन हाउ मेनी एजेस वी हैव टू रिक्वायर? अगर हमें मैच स्टिक से किसी क्यूब और क्यूबॉइड बनाने की आवश्यकता या बनाने की सलाह दी जाए तो हमें कितने मैच स्टिक की आवश्यकता होगी? मीन्स नंबर ऑफ एजेस, इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? तो दे हैव टू रिक्वायर हाउ मेनी एजेस? इसके लिए कितने चाहिए आपको? 12 पीसेस, 12 एज की आवश्यकता होगी। नाउ हाउ मेनी वर्टिसेस? वर्टिसेस दैट इज द प्लूरल वर्ड ऑफ वर्टेक्स। ये जो हम लोग वर्टेक्स कहते हैं बेटा, इसी का हम प्लूरल वर्टिसेस कहते हैं। तो किसी क्यूब और क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस, there are 8, एंड कितने फेसेस होते हैं? अगर इसमें फेस की बात की जाए तो वी टेक द एग्जांपल ऑफ दिस बुक, इस बुक को देखिए बेटा, इसमें कितने फेस है बेटा? एक ए रेक्टेंगुलर फेस है, एक रेक्टेंगुलर फेस ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक अपर, मीन्स अपर, लोअर, दिस एंड दिस। सो हाउ मेनी बिकेम? 6। इस प्रकार से किसी क्यूबॉइड क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं।
So this is the first क्यूब एंड क्यूबाइड, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हम लोगों ने किया। नेक्स्ट सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सिलेंडर की बात करेंगे। तो वन मोर थिंग्स, क्यूब एंड क्यूबाइड को 3 डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं। ऑल दीज आर ऑल्सो 3 डायमेंशनल फिगर, THREE 3 डायमेंशनल फिगर्स, या एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन that I would like to describe, that is cylinder. Dear kids, do you know regarding what is the shape of cylinder? Can you give an examples in our domestic life which use a container having the shape cylinder? So just like the oil drum, or in our homes we also stock the grains in the cylinder shaped container. बेटा एक पानी का ड्रम जो होता है, या तो पेट्रोलियम ऑयल जिसमें हम लोग रखते हैं, तो ड्रम का शेप जो होता है, या घर में अनाज संग्रह करने के लिए, गेहूँ चावल को घर में संग्रह करने के लिए जो हमारे पास कंटेनर आयरन एल्यूमिनियम या स्टील मेटल्स के जो बने हुए होते हैं, उनका शेप भी सिलेंड्रिकल की तरह होता है। तो ये है नेक्स्ट वन इज सेकेंड इज सिलेंडर, CYLINDER, दिस इज सिलेंडर एंड whose shape is just like the shape, a shape है इस प्रकार का शेप, दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। तो किसी सिलेंडर में कितने फेस होते हैं? तो एक ए फेस हो गया और एक ये दोनों सर्कुलर फेस हो गया। तो इस फेस को क्या कहते हैं? कर्व फेस। एक कर्व फेस है, ये सर्कुलर फेस है, सर्कुलर, और सेम सर्कुलर फेस नीचे ही होता है, सर्कुलर फेस। तो इस प्रकार से सिलेंडर के 3 फेस हो गए। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? ए सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग 3 फेसेस इन मिडिल कर्व and both ends 2 सर्कुलर। सिलेंडर क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके 3 फेसेस होते हैं, बीच का हिस्सा कर्व शेप में होता है और दोनों एंड पॉइंट पे 2 सर्किल होता है। सो ए सिलेंडर is a 3 dimensional object having 3 faces, on middle curve and at both ends 2 circular face। इस प्रकार से नंबर ऑफ फेसेस सिलेंडर में कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ फेसेस
number of faces equal to 3, number of edges, number of edges, EDGES 02, and number of vertices equal to, no vertices we find in this part because no line segments having this diagram. इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं होता है, जिसमें लाइन सेगमेंट पर ज्वाइनिंग होगा उसी में वर्टेक्स होंगे। और इस प्रकार से सेकेंड ज्योमेट्रिकल फिगर सिलेंडर के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज सिलेंडर, देन सॉरी कोन। कहीं कहीं बेटा सिलेंडर को राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से भी जाना गया है। तो व्हाट आर द रीजन? इसका रीजन क्या है कि अगर ये सर्किल है बेटा तो सर्किल में रेडियस होगा, ए रेडियस हो गया, सपोज ओ ए है, ये ओ ए डैश है, और ये दोनों फेस में केवल इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये सिलेंडर का हाइट कहलाएगा और ये हाइट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, इसलिए सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी कम ऑन थर्ड, दैट इज ए कोन। अब हम कोन की बात करते हैं बेटा। अब कोन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट वन, दैट द पार्ट ऑफ कोन एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज राइट सर्कुलर कोन। कोन को भी हम राइट सर्कुलर कोन के नाम से जानते हैं। सो आवर थर्ड डायग्राम of geometrical figure which we discussed here, that is a part of cone. Third is cone, that is also called right circular cone। इसे राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। इसका शेप कैसा होगा बेटा? इस प्रकार का शेप होगा, ऊपर का फेस ट्रायंगुलर होगा और नीचे इस प्रकार का इसके बॉटम में सर्किल इंक्लूड होगा। तो इस शेप को हम क्या कहेंगे बेटा? ये शेप है, इसे कोन कहेंगे। तो a cone is also three-dimensional figure having two faces। कोन के दो फेस होते हैं। एक फेस होता है अपर फेस, that is just similar to triangle, and bottom, that is a circle। a face is circular face है, circular face, and this is triangular face, triangular face। अगर इसके इस वर्टेक्स को, इसमें वर्टेक्स है, चूंकि ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग होगा, और जस्ट मैंने इसके प्रीवियस में बताया था कि जहाँ लाइन सेगमेंट होंगे वहाँ वर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये वर्टेक्स है। अगर इस वर्टेक्स को, इस सर्किल है, इसका रेडियस भी होगा, इस वर्टेक्स को और इसे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये पार्ट जो बनेगा ये हाइट ऑफ द कोन कहलाएगा। और ये चूंकि 90 डिग्री के साथ मीट कर रहा है, सपोज इसी ने की, इसलिए 90 डिग्री पे मीट करने के कारण इसे राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं।
तो देन एक ओपी इज ए हाइट, बेटा एक ओए और ओबी जो तिरछी दिखाई दे रही है, ये भी सर्कुलर कोन का हाइट ही होता है, जिसे कहते हैं स्लेंट हाइट। तो कोन में दो प्रकार के होते हैं। अगर सिर्फ हाइट की बात की जाए, तो समझिए कि वो परपेंडिकुलर हाइट है, ये सिर्फ ओपी है। और अगर इस हाइट की बात की जाए तो इसे स्लेंट हाइट कहते हैं, स्लेंट हाइट। इस प्रकार से क्या डिफाइन करेंगे बेटा? एक कोन इज ए 3 डायमेंशनल फिगर having the two face, upper face is a triangular and their bottom is included with a circle. I mean a cone is a three-dimensional object having two faces upper as a triangle and bottom as a circle, बॉटम कैसा होता है बेटा? सर्किल की तरह होता है, और अपर जो होता है वो ट्रायंगल की तरह होता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ फेसेस इन ए राइट सर्कुलर कोन, नंबर ऑफ फेसेस it will be 2, number of vertices that is 1 only this part, and number of edges that will be also 1, number of edges that will be also that is also 1. Which part? Edges. So this part. Fourth one is which we have discussed, that is a sphere. Now our third point related to geometrical object, that is a sphere. So now I would like to construct the diagram of a sphere. In our domestic use or in our life, can you give some examples having the shape sphere? Lots of examples we have. Simple example, that is the football, part of the sphere. Fourth is a sphere, S-P-H-E-R-E, a sphere. Its shape is just like the question is rising, sir, so why not I can say circle? एक क्वेश्चन राइज होता है कि तो सर क्यों नहीं हम स्फीयर को सर्किल क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बेटा वन थिंग रिमेंबर, सर्किल कैन गिव ओनली शेप व्हेनेवर अ स्फीयर इज एन ऑब्जेक्ट। और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इट मीन्स
इसके अंदर कुछ हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम सर्किल की बात करते हैं तो एक शेप बताता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप बताता है कि उसका शेप सर्किल की तरह है। सो दैट इज सर्किल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट स्फीयर इज एन ऑब्जेक्ट। और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो निश्चित है कि इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, इसका वॉल्यूम होगा, या जगह एक्वायर करेगा। फुटबॉल का अगर एग्जांपल लिया जाए तो फुटबॉल हैविंग द शेप स्फीयर, व्हाई inside them I can keeping iron, inside them I can keep air। फुटबॉल के अंदर क्या होता है बेटा? एयर होता है। उस एयर को आप मेजर भी कर सकते हैं, मीन्स इसका वॉल्यूम हो गया, जिसको मेजर करना मतलब वॉल्यूम कहलाया। तो फुटबॉल अगर आप रखेंगे तो उसके लिए जगह भी एक्वायर होगा, जगह चाहिए। सो अ स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल, so I can say a sphere is an object having the circular face। A sphere is an object having a circular face। इसका फेस सर्किल की तरफ उल्टा नहीं होता है, सर्कुलर फेस। सर्किल मीन्स देखने में सर्किल की तरह होता है। सो हाउ मेनी एजेस और वर्टिसेस? तो जस्ट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू माय किड्स, वर्टिसेस या एजेस वहाँ होते हैं जहाँ लाइन सेगमेंट होता है, और इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। स्फीयर के फॉर्मेशन में किसी लाइन सेगमेंट का सहयोग नहीं है। सो नो एजेस, नो वर्टिसेस हैविंग ए स्फीयर, ओनली मीन्स फेसेस, आई मीन number of faces equal to 1, number of edges that is nothing, number of vertices also 0, 0। In this way, dear students, today with help of this video, I having the best practice to give you all the proper understanding regarding the some geometrical figure as cube and cuboid, then cylinder, then cone, then a sphere, and one more we have that the part of frustum। ये फ्रस्टम की बात होती है। फ्रस्टम का शेप कैसा होगा बेटा? तो ड्रिंकिंग ग्लास, वाटर ग्लास जो होता है बेटा, जिसका एक पेंडा और एक माउथ, दोनों का सर्कुलर फेस सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो उस प्रकार के फेस को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रस्टम कहते हैं। इसकी भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो फिफ्थ वन, दैट द पार्ट ऑफ फ्रस्टम। नेक्स्ट वन इज फ्रस्टम, FRUSTUM। ये फ्रस्टम का शेप कैसा होगा बेटा? देखिए, जस्ट लाइक हैविंग दिस शेप, ऐसा शेप बनाइए। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ये दोनों सर्कुलर फेस जो है बेटा, इसका शेप साइज सेम नहीं है, बड़े छोटे हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो फिर ये क्या बन जाएगा? फ्रस्टम से बन के सिलेंडर बन जाएगा। तो इसमें कितने फेस हो गए? तो ये फ्रस्टम इज ए सिलेंड्रिकल शेप हैविंग
A three faces, but both circular ends are not equals. तो फ्रस्टम का डिफरेंशियल क्या हो गया? ए फ्रस्टम इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर. एक ए सर्कुलर फेस हो गया, सर्कुलर फेस, सर्कुलर फेस. एक ए सर्कुलर फेस हो गया बेटा, सर्कुलर फेस, और एक ए कर्व फेस हो गया, कर्व फेस. इन दिस वे आई कैन डिफाइन. एक जीता जाता एग्जाम्पल बाल्टी का दे सकते हैं या फिर पानी पीने वाले गिलास का दे सकते हैं. ए फ्रस्टम इज ए थ्री डायमेंशनल object having three faces, two circular, two different circular faces, and one curve face. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस किसी फ्रस्टम में कितने हो गए बेटे? 3 हो गए. इन दिस वे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, with this video I have summarized some geometrical objects and having my best practice, best attempt, best effort for you all to give the proper understanding regarding these all points. So at last moment I would like to suggest you all my kids properly observe this video. I hope certainly you have benefit. You became a knowledgeable person, and lots of help you have got when you study this chapter geometry. Thank you all my students. Congratulate you all in this COVID-19 situation. Be safe inside your homes. If very necessary, then go outside. And if you go outside, you must wear mask and return back. You must sanitize your hands. Also maintain the social distances. Thank you everyone, and lots of thanks you all. Thank you so much.